ये आइडिया बेसिकली हम जो एक ग्रुप हैं को फाउंडर्स हम सारे ट्रैवलर्स रहे हैं. सो ये ट्रैवल से ही आइडिया आया. बेसिकली वी वर डूइंग अ ट्रैकिंग इन लद्दाख, सो फ्रॉम देयर द आइडिया केम एंड वी स्टार्टेड दिस कंपनी कॉल्ड रोड्स लेस ट्रैवल. सो जो हम कर रहे हैं ये सारा ऑफ बीट ट्रैवल जितना भी होता है और एक्टिविटीज़ होती हैं हम उसको एग्रीगेट करके एक मार्केट प्लेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. The idea that we have is Dine Out. Dine Out is basically a table reservation website where customers across the city can come online and book a table at more than 400 plus restaurants and get great discounts and get a confirmed table, and we ensure that they have the best customer experience at any restaurant that they go to. So basically the business that we do जो हम करते हैं that's in the telecom domain. So we are telecom people and India is a market जहाँ telecom सबसे ज़्यादा boom पे है. Though there has been 2G scams and all, nothing is moving from last 2 years, but still lot of potential. बहुत potential है इस market के अंदर and this is what we are exploring. So I have a tie up with some British guys basically with whom I am working and things are moving nicely over here. We do business, चीज़ें move करती हैं, but still you need a platform to showcase yourself. And I think CNBC आवाज़ एक उसी तरह का प्लेटफॉर्म है where entrepreneurs or the businessmen, I would not say a big businessman, we are not a billionaire, we are a small businessman, decent sized businessman, we can come forward, we get a platform to showcase our capabilities. People get to know about us, people get to know about the unique technologies that are coming into India, and I think this we can showcase today. If I can convince the jury, then this is what we are looking forward to, and I get a platform to show these things. It is good. I certainly do not know कि how much chances I have. I just talk about कि जो मैंने करा है, जो मेरा project है, and the problem I'm trying to solve. So it was more important for me to tell that what I'm doing. So I think the jury asked me a good questions like आपका business plan क्या है, how will you take it forward, and what are the different issues you are doing. And I believe that that's something which I'll take out of this particular discussion and we'll try to identify कि how we can work on this. I think convinced थे सब. It was good that ऑर्गेनिक, सिंस मेरी कंपनी ऑर्गेनिक फूड में है, अ लॉट ऑफ देम वर ऑलरेडी अवेयर इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है एंड देयर वाज गुड क्वेश्चंस एंड आई वाज प्रिपेयर्ड. दो आई थिंक इट वेंट प्रीटी वेल. जूरीज का यही कहना था कि द आइडिया इज़ वेरी गुड, द बिजनेस मॉडल इज़ वेरी गुड, एंड मेरे को कुछ ऐसा नेगेटिव सुनने को नहीं मिला. तो अब बाद में पता चलेगा कि क्या उनका ओपिनियन है उसके बारे में. जूरी राउंड काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी ग्रूलिंग सवाल जवाब हुए अंदर. सो बिकॉज हम ट्रैवल इंडस्ट्री से हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री ई कॉमर्स की सबसे बड़ी सेगमेंट है, तो उसमें काफ़ी कंपटीशन रहता है, तो इसलिए काफ़ी सवाल जवाब थे जूरी के. बट आई थिंक हमने काफ़ी अच्छे उसको टैकल किया बिकॉज हमारे ग्राउंड रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. सो आई एम श्योर काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा. The people like us, we are building up a solution on healthcare. So, and our main motive is to connect to the pyramid of bottom of pyramid of population in India. I think this is a good idea, and providing support to the entrepreneurs. India mein it's very much required. First season of Masterpreneurs, so it should evolve into a good platform for entrepreneurs to connect with each other, knowledge sharing, as well as a good group of mentors to sort of throw your ideas at. मेरा नाम कृपाल सिंह जाडेजा है. मैं गुजरात राजकोट से आया हूँ और मैं जनरली कार्स की सर्विसिंग और उसके इनोवेटिव एसेसरीज के सेलिंग के बारे में मेरा बिजनेस है. सर यूएसपी के बारे में कुछ बताइए. यूएसपी क्या है? द मेन यूएसपी ये है कि हम लोग कार में जो प्रॉब्लम्स है जो कस्टमर्स को पता होता है और जो नहीं भी पता है उसके लिए हम लोग सेफ्टी और कंफर्ट की प्रोडक्ट्स देते हैं. जी, हमारी कंपनी का नाम ग्रीनवे ग्रामीण है और हम ग्रीनवे स्मार्ट स्टोव बनाते हैं जो कि एक ऐसा चूल्हा है जो मिट्टी के चूल्हे की तरह को रिप्लेस करता है. आप इसमें लकड़ी, गोबर, जैसे क्रॉप वेस्ट जो मर्ज़ी जलाइए, पर इसमें फ्यूल की खपत आपकी आधी से भी कम हो जाती है, धुआं बहुत कम हो जाता है. और जो हमारे देश में आप देखते हैं कि 2/3 घर जो हैं अभी तक मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं. तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट, सेफ़ और हेल्दी सोल्यूशन है उन घरों के लिए कि आप अपना डेली कुकिंग एक मुश्किल चीज़ ना रह जाए. नेहा, अगर आपसे पूछूं इन वन लाइन कि आपके बिजनेस की यूएसपी क्या है, आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहेंगे? जी, हम मानते हैं कि हम कंज्यूमर को माइंड में रखकर प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं. हम टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर को मिला करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं और यही कारण है कि ये प्रोडक्ट्स ना केवल एक ऐसी चीज़ है जो आप ख़रीद के बस मतलब आप ऐसे ही खुश होंगे, पर आप इसको रोज़ इस्तेमाल करेंगे, आपकी लाइफ में खुशी के अलावा सेहत, बचत, सुविधा, सारी चीज़ों एस्पेक्ट्स पे असर पड़े. आपकी प्रेजेंटेशन हो चुकी है, उसके बारे में कुछ बताइए. कैसे रहा, ज्यूरी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा?
ज्यूरी के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं सोच कर आई थी कि कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, पर ज्यूरी ने कुछ ऐसे ही सवाल पूछे जो मैं जिनके बारे में सोच के नहीं आई थी। तो एक थोड़ा नया कुछ सोचने को मिला है, कुछ नया वापस जाके बाकी टीम से बात करने को मिला है, और उम्मीद है कि इस एक्सपीरियंस के साथ और आगे जा कर के हमें वी विल डू मच बेटर। सबसे पहले हमें अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताइए। मैं आलोक चौड़िया हूँ। आई एम फ्रॉम वैल्यू कनेक्ट्स टेलीकॉम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों की ये कंपनी बड़ी नई है, 2011 से शुरू हुई है, जिसमें हम लोग मोबाइल यूज़र्स का एक्सपीरियंस मेजर करते हैं एंड हम ये बताते हैं कि एक्सपीरियंस इम्प्रूव करने से ऑपरेटर्स का रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इम्प्रूव होंगे। कॉस्ट कम होंगे टू डिलीवर सर्विस एंड रेवेन्यू इम्प्रूव होगा। तो spending money on improving experience is a win-win situation for everybody. Sir, USP in one line of your business. We are unique in the sense to measure experience of a customer. ओवरऑल आपकी प्रेजेंटेशन कैसी रही? ज्यूरी के जो सवाल जवाब रहे, वहाँ पर कुछ ग्रिलिंग होती है, वो एक्सपेक्टेड था, तो किस तरह का पूरा एक्सपीरियंस रहा अंदर? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपकी जूरी काफ़ी नॉलेजेबल थी। एक बड़ा नया फील्ड है उनके लिए, क्योंकि अलग अलग फील्ड से पार्टिसिपेंट्स होंगे एंड मुझे ये खुशी है कि उन्होंने हमारे प्रेजेंटेशन को और हमारे यूएसपी को समझा बड़े क्लियरली और काफ़ी क्वेश्चंस किए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर कंपनी का किस दिशा में जा रहा है, जिसका हम लोग के ऊपर बात हुई। सर, आपकी अब उम्मीद क्या कर रहे हैं आप प्रेजेंटेशन के बाद? हम उम्मीद पे तो रहते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन गया और उन जूरी को पसंद आया होगा। तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग कि वी कम सेलेक्टेड टू द नेक्स्ट राउंड। अभिजीत, सबसे पहले मैं आपसे आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहूँगी। आपकी कंपनी किस एरिया में काम कर रही है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब हमें बताएं थोड़ा इन डिटेल। हमारी कंपनी बेसिकली राइट वाटर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। हम बेसिकली रूरल पोर्टेबल वाटर स्पेस में काम करते हैं, यानी जो ग्रामों में वाटर क्वालिटी का प्रॉब्लम है वहाँ पे हम लोग कम्युनिटी वाटर सेंटर सेटअप करते हैं। आज इंडिया में जो ग्रामीणों में पानी सप्लाई होता है 80% पूरा ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है, यानी नलकूपों या बोरवेल के आधार से वो पानी लेते हैं। तो जैसे जैसे विथ टाइम एज एंड व्हेन टेस्टिंग इज़ बीइंग कैरिड आउट बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, इट इज़ ऑब्जर्व दैट ये पानी में केमिकल कंटामिनेशन आ रहा है। जैसे फ्लोराइड है पानी में, आर्सेनिक है, आयरन है, नाइट्रेट है एंड सैलिनिटी है। तो जहाँ ऐसे कंटामिनेंट्स पानी में पाए गए हैं वो गाँवों में, वो ग्रामों में हमारी कंपनी वाटर सेंटर सेटअप करती है और वो ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल का प्रदाय करती है। सर, अगर मैं आपसे पूछूं आपके बिजनेस की यूएसपी क्या है, तो वो क्या होगी? हमारे बिज़नेस की यूएसपी जो पूरा जो नया स्पेस जो हम बोलते हैं कि रूरल कम्युनिटी वाटर सेंटर स्पेस, ये एक नया है और लास्ट 4 से 5 सालों में अभी तक गवर्नमेंट का प्रायोरिटी था कि लोगों को पानी दिया जाए, लेकिन 4 से 5 सालों में गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है कि लोगों को गुणवत्ता वाला पानी दिया जाए। और इसका रीज़न ये रहा है कि इंडिया यूएन का एक सर्वे हुआ था, उसमें इंडिया को आउट ऑफ 122 कंट्रीज़ 128th रैंक है एज फार एज वाटर क्वालिटी इज़ कंसर्न। तो हमारी कंपनी एक नई कंपनी है जो ये स्पेस में, जो स्पेस एज सच नया है, और हमारे कंपनी के पास टोटल पोर्टफोलियो ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है, यानी जितने भी अलग अलग प्रकार के गुणवत्ता के प्रॉब्लम्स पानी में पाए जाते हैं वो सभी प्रकार के टेक्नोलॉजीज़ उनको टैकल करने के लिए हमारे कंपनी के पास है। तो ये एक हमारे कंपनी का एक यूएसपी है। और सेकेंडली कि हम इसमें 4 साल से काम कर रहे हैं, तो एक फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज जिसको कहा जाता है, वो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज हमारे कंपनी को है। अभिजीत, अब आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं हमारी जूरी के सामने, 6 मेंबर्स हैं, बहुत काफ़ी कड़ा है, इम्तिहान होगा, तो किस तरह की तैयारी करके आए हैं आप? तैयारी है ना, नोटिस तो काफ़ी शॉर्ट थी, सैटरडे को हमको पता चला, तो एक ही दिन का टाइम था, बट एक दिन में पूरा संडे में हम लोगों ने पूरा हमारी कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है, जो हमने काम किया हुआ है, जिस स्पेशलिटी हमारी कंपनी की है, वो पूरा एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, और 2-4 वीडियोस भी हमने बनाए हैं कि जो काम हम लोग गाँवों में कर रहे हैं उसकी एक झलक जूरी को भी दिखाई जाए। तो कुछ वीडियोस और प्रेजेंटेशन के सहारे एक दिन में हमने उसको रेडी किया हुआ है। थैंक यू। एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन फिर से ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ सर, स्लाइडली बॉडी टर्न लीजिए, नहीं आप उधर ही रहिए ना, लेकिन बॉडी इनकी तरफ चलिए, बस रोल रोल रोल। अभिजीत, अपने बिजनेस के बारे में बताइए।
हमारी कंपनी राइट वाटर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग रूरल पोर्टेबल वाटर स्पेस में काम करते हैं, यानी जो ग्रामीणों में पानी की प्रॉब्लम होती है, गुणवत्ता की प्रॉब्लम होती है, ऐसे ग्रामों में हम शुद्ध पेयजल का प्रदाय करते हैं। आज भारत में ग्रामीणों में जो वाटर सप्लाई रहता है 80% ऑफ दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर, यानी कि नलकूप या बोरवेल के आधार से वो पानी लेते हैं। तो विथ टाइम और जैसे जैसे टेस्टिंग पानी की हो रही है, उस हिसाब से पानी में पाया गया है कि काफ़ी केमिकल कंटामिनेंट्स है, जैसे कि फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, नाइट्रेट और सैलिनिटी। तो जिन गांवों में जो स्टेट्स में ये कंटामिनेंट्स पाए जाते हैं, वहाँ पे हमारी कंपनी थ्रू गवर्नमेंट हम ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाते हैं जो ये कंटामिनेंट्स को रिमूव करके वो गांवों में शुद्ध पानी का पेयजल करते हैं। So are you a for-profit or non-profit organization? No, we are a for-profit private limited company, and we execute these community water centers on behalf of different state water supply agencies, because as ग्रामीण water supply जो है वो आज पूरा गवर्नमेंट के अंडर है। So based on through government departments we execute these projects. सर, आपका तो जूरी राउंड हो चुका है, अब इस जूरी राउंड से क्या उम्मीदें हैं आपको, किस तरह से रहा, क्या मना पाए आप जूरीज को? नहीं मना पाया या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जूरी वाकई में बहुत खुश हुए थे। मैं भी एक्साइटेड था, वो भी एक्साइटेड थे, और मुझे एक्स्ट्रा 1 मिनट दिया बोलने के लिए। उनको मेरा कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, कैसी लगी जूरी? लाइक जूरीज ने उनके कुछ इनपुट्स दिए आपके? हाँ, काफ़ी इनपुट्स दिए, मुझे काफ़ी इनपुट्स दिए। जितना मुझे नॉलेज है उतना उससे ज़्यादा वो लोग ने मुझे इस बारे में समझाया। तो वो एक इंटरेक्टिव टाइप ऑफ पूरा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू। थैंक यू। Priya, first of all, tell us about you, your business, your company, the area which you're working in. Okay, I manufacture wellness foods. I have started with a range of multi-grain beverage mixes which are 100% natural, and they sell in the brand name of Stroms. Stroms is an acronym for Strong Minds and Bodies. We have it online as well as offline at various premium gourmet stores across India. Yeah, I have a factory which is ready for ISO 22000 certification, and the manufacturing happens in Bombay. Priya, what is the USP of your business? Tell us that. All natural comfort food. That's what Strom stands for. It's wellness food, it is a feel-good food, it's an anytime meal, it's a beverage meal in a quick-to-drink form. So anytime you're hungry or you're missing your breakfast or you're in a hurry to rush to office or evening during snack time, these are the slots when you could pick up a bottle of Stroms and drink it. So which segment of the customer base are you targeting? I have a range for kids, 2 to 12-year-olds. Then there's one for adults also, 13 years and above, all adults, which is a high protein one as per the nutrition requirements of the growing kids and adults. And there's a diabetic variant, which is a sugar-free variant. We do not add any artificial sweetener. It's left to the customer to sweeten it to taste. And yeah, the audience is anyone and everyone who is in a hurry to go and he's skipping his meals, and he realizes that he has to have good nutritious food. So all the active professionals and the youngsters, they all are my clients. अब आपकी प्रेजेंटेशन पूरी हो चुकी है, थोड़ा हमें बताएं कि अंदर क्या-क्या हुआ, जूरी के साथ किस तरह की इंटरेक्शन? Well, interacting with customers is always a pleasure. I've loved talking to my customers, and here I was actually presenting my product, the Strom story. I was talking about the product, and I gave a first-hand experience of the product to all the customers, all the judges there, and I loved the way they interacted. The advice that they gave is very useful, very relevant to what I'm about to do. So it was very exciting and fun inside. अब आप क्या उम्मीद कर रही हैं आगे के लिए? आगे के लिए, well, I have my fingers crossed. I don't know how good the others are. Probably the others are far better than what I'm doing. I've just started. I have a long way to go. So keeping my fingers crossed. Thank you. Our company is EcoSyn Solutions, and we are into the clean energy space. What we provide majorly is energy efficiency solutions and solar solutions to the industries, commercials, and agricultural sector. So we have products like solar pumping, solar rooftops, solar lighting, lighting energy saver, and solar cold storage, which we are delivering partly for commercials and partly for agricultural segment.
How long have you been in this business? We registered our company in 2010, but we started while we were in our college in 2009. So, Devendra, tell me what is the USP of your business? The USP of our business is that we, no matter who you are, will figure out a way to get you sustainable energy in an affordable, efficient, and reliable manner. And the methodologies used by us to arrive at those solutions is what makes us unique. Devendra, as you might be aware, you are one of the 750 contestants who have been chosen all over India. Yeah. You are one of them, and you have come to represent the Western Zone. So, tell me how is the experience? कैसा लगता है? Yeah, it's a fantastic feeling that we are amongst the very few in the Western Zone to come here and present our company to the whole India and share about what we do and let them know that, hey, we are here. And My thoughts about Masterpreneur as a concept is that it's a fantastic platform for young entrepreneurs or to give them an opportunity to present their company, their work to the public, and also to reach out their customers. And if you win in this, then it might definitely open up a lot of roads for you. And lastly, now you're ready for your presentation. Next will be yours. So, how you're going to pitch your idea to the jury? I have a presentation, and it's going to be a story that how we started and how we went on to execute some of the projects which we thought initially we won't be able to, but we did, and what are our plans forward. So I will be presenting that to the jury, and I look forward that they would like it. Thank you. अभिजीत, ज्यूरी का राउंड हो गया है, इंटरेक्शन हो चुकी है, बताइए क्या रहा अंदर, क्या क्या हुआ? अच्छा रहा है ना, काफ़ी क्वेश्चंस आए थे जूरी के, आई मीन प्रेजेंटेशन के बीच बीच में काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, सो किए हमने आंसर्स, होपफुली लाइक यू नो उनके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से आंसर कर पाए. आपके मुताबिक मैं पूछूं कि आपकी प्रेजेंटेशन आप जो सोच कर आए थे, क्या सोच कर आए थे, कैसी रही वो बताइए हमें थोड़ा इन डिटेल. प्रेजेंटेशन अच्छी रही. हम सोच के आए थे कि पहले प्रेजेंटेशन देंगे फिर क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, बट इट वाज लाइक मिक्स, बीच बीच में वो रोक के काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे थे. सो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस, उनके क्वेश्चंस भी काफ़ी यू नो इंटेंसिव थे. सो अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपनी प्रेजेंटेशन? आई एम सेटिस्फाइड, लाइक प्रीटी मच सेटिस्फाइड. सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आई थिंक आई विल गेट थ्रू. ओके, मैं समीर गौतम, मेरे कंपनी का नाम है rankjunction.com. रैंक जंक्शन जो है ये भारत का, इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा रैंकिंग प्लेटफॉर्म है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए. इसमें अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे आते हैं और ऑनलाइन एक ही एग्ज़ाम देकर वो अपना ऑल इंडिया रैंक पाते हैं. उसी के साथ साथ हम लोग अलग अलग ऑथर्स, कोचिंग क्लासेस, इनकी टेस्ट अवेलेबल कराते हैं rankjunction.com पर. तो बच्चे को, स्टूडेंट को एडवांटेज ये होता है कि वो घर में ही या एक ही जगह से सारे ऑथर्स को एक्सेस कर सकता है. तो इसमें हम लोग हमारा जो प्रोडक्ट इवॉल्व हुआ है उस बारे में बताएंगे कि किस तरह से रैंक जंक्शन की स्टोरी एक आइडिया से आज इस मुकाम तक के पहुंची है. इस बारे में बताएंगे जूरी को, और आगे में हमारे क्या प्लान्स हैं इस प्रोडक्ट को आगे ले जाने के. सर, मास्टरप्रेन्योर में एज यू मस्ट बी नोइंग कि पूरे इंडिया से कुछ सिलेक्टेड लोगों को चुना गया है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए. जी. तो हाउ यू फील अबाउट इट एंड हाउ व्हाट यू थिंक ऑफ मास्टरप्रेन्योर एज अ कांसेप्ट? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं. और इसमें ख़ास करके जो CNBC 25 लाख का ऐड क्रेडिट देने वाला है वो हम जैसे B2C कंपनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा. और देखते हैं. देवेंद्र, आप अंदर से होकर आ गए, प्रेजेंटेशन हो गई, जूरी के साथ इंटरेक्शन हो गई, कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस, क्या क्या हुआ अंदर, थोड़ा इन डिटेल. अच्छा, प्रेजेंटेशन तो कम था, इंटरेक्शन ज़्यादा था. Jury were pretty happy about कि the product which we have, the solar cold storage, and उनको एक थोड़ा सा clarity चाहिए था कि because we have got existing line of business which is the solutions business. उसके बाद में ये cold storage main है कि ये है, तो I cleared to them that is a product which we are currently working on and जो हम launch करने वाले हैं. So they were pretty excited about that particular product. So according to you, how impressed the jury was with your idea? I think maybe 8 out of 10. You're giving yourself 8 out of 10. Yeah. That's pretty confident. Okay, thank you so much.
थैंक यू। कंपनी के बारे में बताइए, प्रोफाइल क्या है कंपनी का, एंड देन कम टू द एरिया ऑफ बिजनेस। श्योर। सो ज़ेपो जो है वो छोटे बिजनेसेस को ऑनलाइन सेलिंग में हेल्प करता है. We have made a software using which any small business can open their online store in like 5 minutes and for as less as 1,000 rupees a month. हमें कंस्ट्रक्शन वाला समझ लीजिए जो इंटरनेट पे दुकान खोल के देते हैं और हम लोग भाड़ा लेते हैं हर महीने का. तो दैट इज़ व्हाट बिजनेस वी आर इनटू. Nitin, what is the USP according to you? What is the USP of your business? राइट. तो बेसिकली अगर किसी भी छोटे बिजनेस को अपनी वेबसाइट खोलनी होती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है. वेबसाइट डेवलपमेंट फर्म्स, पेमेंट गेटवे, कुरियर कंपनीज. हमने उन सबको मर्ज करके वी ब्रॉट देम ऑल अंडर वन रूफ एंड वी प्रोवाइडेड एन एंड टू एंड सोल्यूशन टू इट. So that's the USP. Simplicity, cost effectiveness is the USP of it. तो ऑनलाइन, जैसा कि कहा, ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में बेसिकली जो हेल्प करते हैं कंपनियों को अपना एक प्लेटफॉर्म डेवलप जी करने में. जी कंपटीशन जाहिर है काफी ज्यादा है, जी कई सारी कंपनियां बिल्कुल. इसमें. तो ज्यूरी के सामने जब आप जाएंगे तो किस तरह से यू विल प्रेजेंट योर आइडिया कि भाई आपका बिजनेस Right. सबसे बेटर है. राइट. तो बेसिकली बात यह है कि ई कॉमर्स एक बहुत ही बढ़िया मीडियम है सेल करने के लिए. जब 90s में टेलीफोन की बून आई थी तब लोगों ने टेलीफोन से ऑर्डर्स लेना शुरू किए थे. वी वांट टू ब्रिंग दैट बून टू स्मॉल बिजनेसेस in e-commerce. We want small businesses to use e-commerce as an effective channel to take orders because it is the most effective channel. So that's what we are going to convince the jury about, that there are 8 million small businesses in India. 80 लाख छोटे बिजनेसेस हैं जिनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं और हम लोग ने कितना सिंप्लीफाई किया हुआ है उनके लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए. That's the idea. सर, आपकी प्रेजेंटेशन हो गई है, अंदर ज्यूरी राउंड आपका खत्म हो गया, तो क्या कुछ हुआ अंदर, हमें उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताइए. So I started my presentation and everybody started taking interest in that. काफ़ी लोगों को अच्छा लगा. उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे अपने भी सलाह उसमें दिए और रैंक जंक्शन के बारे में उन्हें जो भी क्वेरीज थी उन्होंने उसमें पूछी और काफ़ी इंटरेस्टिंग था सेशन. तो आपको क्या लगता है ज्यूरी कितनी सेटिस्फाइड नजर आई आपके आइडिया से, एरिया ऑफ बिजनेस से, और जिस तरह से आप अपना कंडक्ट कर रहे हैं? मुझे तो काफ़ी सेटिस्फाइड लगी और उन्हें लगा, अपेरेंटली ऐसा लग रहा था कि उन्हें प्रोडक्ट किसी ज़रूरत को पूरा कर रहा है. So what do you think, what are your chances for next round? I think 100%. Yasir, first of all, tell us about your company. Sure. The company is called Amore Gelato, and we manufacture, produce, and distribute Italian ice cream, gourmet Italian ice cream. A little more detailed brief about your company. Sure. We started about 7 years ago, manufacturing freshly made Italian frozen dessert, and since then we've expanded across India into the retail domain, where we have gelato parlors or gelaterias throughout the country in about 12 cities. And we're now moving into different verticals like business to business and modern retail. Yasir, according to you, what is the USP of your company? Fresh, natural, simple. Okay, so how prepared are you for the jury round that you're going to present your idea next? I think you're the next. I think 8 years of preparation. I think you go through these things day in, day out. And with any entrepreneur's journey, you're always faced with something new. And it's just another step along the way. And lastly, I would like to ask you about what do you think of Masterpreneur as a concept and as a platform? I think it's a really interesting concept. I was actually very, very excited about it when I heard about it, it had come to my attention. Something that I would want to be a part of. It seemed just an opportunity for the entrepreneurs out there for the public to really understand what the entrepreneurs go through on a day-to-day basis, because I think people see businesses and they think they just sprout overnight. They don't see the journey that the entrepreneur and the co-founders take to get to where people start to recognize them, and that's exciting. That's exciting. It was really nice. I've met Alok for the second time here, and it was good. They were pretty, happy with the whatever progress that we've done in short time, and yeah, let's see how it turns out to be ahead. So tell us about the
Cross questioning round, the grilling round. So the main question was, how we gonna scale it from here to, there are 80 lakh small businesses in India. We have just touched 800. There's a huge task in front of us. Not even 0.1% of the market is covered. So there's a huge task in front of us that we have to cover. वही बात चल रही थी और Did they give you some suggestions or their inputs? Yes, so one of the important inputs that I think I'm going to take back from here is, that term that Alok uses as frenemy, where he's not only a friend but an enemy as well. So we're going to tie up with these e-commerce giants out here, Flipkart and Amazon, which are going to help us take forward from here. And Nitin, lastly, my question to you would be on what do you think of Masterpreneur as a platform? Oh, it's been it's a great thing that these guys are conducting these events to promote startups, promote first-time entrepreneurs. So good luck. You're doing good. तो मेरी कंपनी 1 साल पुरानी है, उसका नाम द कंटेंट कंपनी है। छोटी टीम है जिसने कंटेंट मार्केटिंग से स्टार्ट किया था। कंटेंट मार्केटिंग एज अ कॉन्सेप्ट इंडिया में नया है और हम पहली ऐसी कंपनी है जो कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं। हमने एक डिवीज़न से शुरू किया था और अब हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कॉमिक्स में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में। बहुत उम्मीदें हैं, so let's hope for the best. Content as in, would you like to detail? कंटेंट एज इन एवरीथिंग। जैसे आप बात करते हो वो भी कंटेंट होता है, जैसे आप बुक पढ़ते हो वो भी कंटेंट होता है, आप ऐड देखते हो वो भी कंटेंट होता है, जो आप अभी टेप कर रहे हो वो भी कंटेंट होता है। तो हमारे लिए ये स्कोप काफ़ी बड़ा है और हमको एज अ कंपनी हर एक एस्पेक्ट को टच करना है जहाँ पे कंटेंट या कॉन्वर्जेसन आपकी ज़िंदगी को टच करता है। तो एज यूज़र्स ऑफ कंटेंट आप सब हमारे कस्टमर्स हो, तो एज क्लाइंट्स प्रॉबेबली द पीपल जो ये कंटेंट आप तक लेके आते हैं वो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। बट इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है और पोटेंशियल भी काफ़ी है, तो काफ़ी एक्साइटेड हैं। आपके बिजनेस की यूएसपी क्या है? हमारी बिज़नेस की यूएसपी ये है कि बिज़नेस दिल से चलती है। बड़ी स्ट्रेंज बात है बट एक्चुअली अगर 25 लोग एक कंपनी में आते हैं जहाँ पे इट्स नॉट अबाउट द मनी बट इट्स अबाउट कि काम अच्छा हो और इम्पैक्ट बड़ा हो और उसके लिए वो काफ़ी टाइम भी दें, तो वो यूएसपी होती है एक बिज़नेस की। क्योंकि मैं मानती हूँ एज people are the ones that contribute to the business and we're very lucky to have the right people and जो भी हम यहाँ खड़े हैं is because of the team, so that's my USP. अब आपकी प्रेजेंटेशन होने वाली है अगली और द नेक्स्ट, तो किस तरह से आप तैयारी करके आई अपने आइडिया को पिच करने के लिए अंदर ज्यूरी के सामने? जैसे मैंने कहा मैं दिल से बिज़नेस चलाती हूँ, तो मैं दिल से ही प्रेजेंट करने आई हूँ। ये बिज़नेस ऐसा नहीं है कि मैं आपको आके हार्ड फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स दूँ। ये बिज़नेस ऐसा है कि मैं आपसे कॉन्वर्जेसन करूँ, तो वही करने आई हूँ। और बस कॉन्वर्जेसन तो ब्रेड एंड बटर है, पेट भरता है उससे, तो उसके लिए तो फुली ऑल द टाइम प्रिपेयर्ड हूँ। Thank you so much. Yeah, so tell us what happened inside. Very interactive, great panel of with great questions, and I thought it was really the whole experience just in general was kind of makes you feel good about what you're doing, and that when you see that others also really vibe or really understand what you're trying to do, it says that there's a sense of purpose with what we've been trying to do for the last 8 years. So what do you think, have you managed to impress the jury with I your don't idea and I don't know. I can't speak for anybody else. All I know is that you go in there, you speak from the heart, and if they resonate with that, then they'll enjoy it. If not, then okay, but what's your feeling about your chances for next round? I think, well, from what I understand, there's everybody that's here today is a very good company, that are good entrepreneurs. So to get this far in itself is an accomplishment. So it's really difficult to say because I haven't seen anybody else pitch, and I don't know what their brands or their businesses are about. So difficult. It's really difficult to say, but I'm confident. I'm happy, and I wouldn't have changed anything. I don't feel that. I wouldn't change anything. Thank you and best of luck. Okay, so Aruna, you're done with your jury round and presentation, so how it went?
इट वॉज़ वेरी गुड, अच्छा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. एज ए यंग बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव भी आपको जानने को मिले, तो आपको पता चलता है कि आपको आगे से क्या करना है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो एज दैट it was basically the best management lesson in the next, in 10 minutes जो हमको मिला. तो it was a very good experience. So you learned as in what I had 4 इंडस्ट्री के लोग from various fields. अगर आपको 10 मिनट में आपका पूरा बिजनेस वापस रीथिंक करने के लिए लगा दें तो एज अ बिजनेस पर्सन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसी पर्सपेक्टिव आपको रोज़ रोज़ नहीं मिलती. आप अपने बिजनेस में इतने इन्वॉल्व होते हो कि एक्सटर्नल लोग क्या सोचते हैं या क्या पूछ सकते हैं या क्या चाहते हैं आप नहीं जानते. तो अगर ऐसे इंसाइट्स आपको विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक प्लेटफॉर्म में मिले, इट्स रियली वेरी गुड फॉर अ स्मॉल बिजनेस लाइक मी, फॉर समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट. मतलब एज आई सेड हम 1 साल ओल्ड हैं, तो ऐसी पर्सपेक्टिव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. So what do you think, what are your chances of making it to the next round? I didn't think I had any chance to make it to this round, so I don't really know आगे क्या होगा. As I said, we've been lucky and hopefully we'll continue being lucky. Or if not, we'll be back next year for sure. We'll be luckier next year. So yeah. Thank you so much. अभिजीत, अब आपने जोनल राउंड क्लियर कर लिया है, नाउ यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ मास्टरप्रेन्योर. तो आप अभी तो फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं, आगे व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अभी तो प्रिटी मच इलेटेड. जैसे हमारे डिस्कशन में जो अदर बिजनेसेस थे जो अदर कंपटीशन में आए थे, सो दे वर ऑल अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस. तो उसमें शॉर्टलिस्ट होना इज़ लाइक रियली प्रिविलेज फॉर आवर कंपनी एंड मी टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर हियर. सो फीलिंग वेरी इलेटेड एट दिस मोमेंट. So what according to you was the idea or that one factor which made jury select your business among all the other 10? आई थिंक हमारा जो बिजनेस मॉडल है जहाँ पे हम गांव-गांव में जाके पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वो आई थिंक समथिंग विच जूरी रियली लाइक, बिकॉज वी आर प्राइमरली ऑपरेटिंग इन माइक्रो विलेजेस, 500 लोग, 200 लोग एंड ट्राइबल विलेजेस. सो आई थिंक जूरी रियली अप्रिशिएटेड दैट कि इंटीरियर में जाके वी आर सर्विंग पीपल. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है आपके बिजनेस में वो क्या चीज़ थी जो जजेस को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और जिसके बेसिस पे उन्होंने आपको आगे जाने का मौका दिया? एक तो ये अपकमिंग मार्केट है, हेल्थ फूड्स, वेलनेस फूड्स, दीज आर दी प्रोडक्ट्स फॉर टुमारो. आजकल अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गया है कि सबको लगता है कि ऐसी चीज़ें हमें लेनी चाहिए और बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता बाहर जितने सप्लीमेंट्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो एक डर सा रहता है कि लेना तो चाहिए लेकिन ले कि नहीं. तो वैसे सिनेरियो में अगर कोई एक 100% नेचुरल फूड कोई लेके आता है एंड इट्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रस्ट अराउंड इट, तो people like the concept. So it is a concept of the future. So I hope the judges have understood and picked it up. आई थिंक हमारे बिजनेस की एक ख़ास बात ये होगी कि वो एक बहुत रियल नीड को एड्रेस कर रहा है. बहुत ज़रूरी चीज़ है, घर में खाना हर कोई पकाता है, रोज़ कई बार पकाता है, और वो खाना बनाना आपके लिए अनहेल्दी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप स्मोक इनहेल कर रहे हैं, कुछ अनहेल्दी चीज़ गैसेस इनहेल कर रहे हैं. तो आई थिंक एक बहुत रियल नीड को हम एड्रेस कर रहे हैं और एक बहुत वाइड स्प्रेड नीड को एड्रेस कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि उसी वजह से आवर बिजनेस स्टूड आउट टुडे. एक्सपीरियंस कैसा रहा वेस्ट जोनल राउंड का इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट्स, देयर आइडियाज, बिजनेस स्केलेबिलिटी, इनोवेशन, जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं जिन पर सिलेक्शन होना है, तो इन टर्म्स ऑफ दैट कैसा लगा आपको वेस्टर्न जोनल राउंड और कैंडिडेट्स? जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो आइडियाज़ थे वो 10 आइडियाज़ बहुत अलग अलग थे और जो लोग वो आइडियाज़ लेके आए थे वो बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे. सो there was a housewife, there was somebody who started as a mechanic and now has a business of his own. We had some young budding MBAs who participated. So for me it was good to see people from different backgrounds having one common thread, which is passion. सर, जिन 3 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है अगले राउंड में जाने के लिए,
उनके बिजनेस में ऐसा क्या था या जो एक फैक्टर क्या था जिसके बेसिस पे दे स्टूड अमंग ऑल अदर 7? देखिए, मेरे लिए सबसे ज़रूरी एक चीज़ है विच इज़ स्केलेबिलिटी. तो बिज़नेस बहुत लोग करते हैं एज अ पास टाइम, तो वो बिज़नेस अगर छोटा भी रहे तो चलता है, बट अगर आप अपने बिज़नेस को बहुत पैशनेटली लेते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज स्केल. तो मेरे लिए स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो बिजनेसेस 3 हमने सिलेक्ट किए हैं मेरे हिसाब से स्केलेबल हैं. सर वन लास्ट क्वेश्चन, अब जो 3 कैंडिडेट्स आगे जा रहे हैं या अभी और 9 कैंडिडेट्स जुड़ रहे हैं हमारी इस लिस्ट में, उन सब के लिए आपकी राय क्या होगी? क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे और ज़्यादा टफ होता जाएगा, तो सम टिप्स इफ यू वुड लाइक टू गिव अवे टू आवर कैंडिडेट. हाँ, तो 2 चीज़ कहूँगा मैं. एक, ऑब्वियसली कीप द पैशन गोइंग. Passion is very very important, and the other thing which is more from a presentation perspective is जो आप बता रहे हैं, जो आपका आइडिया है, क्योंकि जो टाइम होता है बहुत कम है, तो जो आपका आइडिया है वो आप पहले बताइए. तो लोग नॉर्मली क्या होता है कि आप बैकग्राउंड डे में बहुत समय खराब कर देते हैं और आइडिया इतना क्लियरली पता नहीं चलता. इसलिए अपना आइडिया बताना लोगों को वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आइडिया ही बिकता है. It was really inspiring, very interesting, a great learning. We met some superb candidates today. A lot of passion and a lot of enthusiasm. It's nice to see in an economy like this, people still have such big dreams and so much positivity. So it was really fun. Ma'am, talking about the various ideas, 10 different ideas were presented today. You met 10 different candidates and selected 3 of them. So what was that thing that made them stand out among all the Well, I think the key thing that we were looking for is which is a business that has good scalability and that can benefit from Masterpreneur. So we wanted to see both angles. You know, how can we help? Where's the entrepreneur that will be able to take learning and mentorship and whatever else and really grow? So what kind of commitment and passion and future that business holds? I would say that, the advice that I would give going forward, just from having sat in on this round, is that definitely be very focused in your idea and be very clear about the concept, have scalability, and continue to show the passion and research and knowledge for the business model. Know your competition really well, and and I think also be able to learn. I think that's something that people like to see in entrepreneurs. You know, that yes, we like to see aggressiveness and we like to see passion, but we like to see a little bit of humility as well, and ability to grow, the ability to grow.